السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمس اکیڈمی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں کچھ اہم معروضی سوالات لے کر کے آیا ہوں۔ کچھ ایسے سوال جو اکثر UGC نیٹ JRF کے امتحان میں پوچھے جاتے ہیں۔ اس سے قبل 85 سوال حل کرائے جا چکے ہیں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو جلد سے جلد اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں۔ آج کا پہلا سوال آپ کے سامنے میں ہے۔ ڈرامہ انارکلی میں باب دوم کے منظر سوم کا عنوان کیا ہے؟ آپشن اے شیش محل، آپشن بی سلیم کا ایوان، آپشن سی قلعہ لاہور کا ایک ایوان۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپشن سی قلعہ لاہور کا ایک ایوان۔ دیکھیے، جب بھی ہم ڈرامہ کو پڑھتے ہیں تو ڈرامہ انارکلی میں کیا ہے؟ 3 ایکٹ اور 13 سین ہے۔ اب اس کو یاد کیسے رکھیں، ان کے لیے ایک ٹرک ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ دیکھیے، 3 ایکٹ کی میں نے بات کی ہے، باب اول، باب دوم اور باب سوم۔ باب اول میں کیا ہے؟ عشق ہے۔ باب دوم میں کیا ہے؟ رقص ہے۔ اور باب سوم میں کیا ہے؟ موت ہے۔ اب باب اول میں ٹوٹل کتنے منظر ہیں؟ ٹوٹل 4، کل 4 منظر ہیں۔ اب باب دوم میں رقص ہے، اس میں ٹوٹل کتنے منظر ہیں؟ اس میں بھی 4 منظر ہیں۔ باب سوم میں موت ہے، اس میں ٹوٹل کتنے مناظر ہیں؟ اس میں 5 مناظر ہیں۔ اب ان کو یاد کیسے رکھیں؟ عشق، اس کا ایک ٹرک یہ ہے یاد رکھنے کا کہ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے بس غب، با سین غائن پہ بس غب۔ اب دیکھیے کیسے پہچاننا ہے۔ منظر اول میں کیا ہے؟ حرم سرا اور پائے باغ کے درمیان میں ایک بارادری۔ یہاں بارادری چھوٹ گیا ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں، بارادری لکھا ہوا ہے۔ اب بارادری کا مطلب کیا ہوا؟ بے سے بارادری۔ اس طرح آپ نے یہاں سے پہچان سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی منظر اول میں کیا ہے؟ بارادری۔ یہ ہمارا کی ورڈ نکل کے آیا ہے جس کو ہم بے سے پہچانیں گے۔ منظر اول میں حرم سرا پائے باغ کے درمیان میں ایک بارادری، ٹھیک ہے؟ امید کرتے ہیں یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ یہاں پہ بارادری لکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا کی ورڈ ہوا۔ بارادری کو دیکھیں گے جیسے ہی تو ہم کیا سمجھ جائیں گے؟ باب اول کی بات ہو رہی ہے، اب باب اول کے منظر اول کی بات ہو رہی ہے، یعنی منظر اول میں کیا ہے؟ بارادری ہے، جس کو ہم لوگ بے سے یاد رکھیں گے، بے با سین غائن پہ بس غب سے۔ اب منظر دوم میں کیا ہے؟ سلیم کا ایوان ہے، ٹھیک ہے؟ سلیم کا ایوان کو کیا سین سے یاد رکھیں گے، منظر دوم میں جو ہے بے سین، یعنی بس تک ہم لوگ پہنچ چکے ہیں۔ منظر سوم کی اگر بات کریں تو غین ہے، حرم سرا میں ایک غلام گردش۔ غین سے کیا ہے؟ غلام گردش، تو بس غین تک ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اب پا میں کیا ہے؟ منظر سوم، یعنی حرم سرا کا پائے باغ، پائے باغ یعنی پا سے پائے باغ، یعنی پا سے ہمارا ہو گیا بس غب، یعنی جب ہم بس غب کو یاد کر لیں گے، بس غب میں کیا ہے؟ 4 حروف ہیں۔ اسی طریقہ سے باب اول میں 4 منظر بھی ہیں، با سے بارادری، سین سے سلیم کا ایوان، غین سے غلام گردش اور پا سے پائے باغ۔ تو اس طریقے سے کیا ہوا آپ کا؟ بس غب سے آپ باب اول کے 4 مناظر کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ باب دوم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو باب دوم میں کیا ہے؟ رقص ہے۔ رقص میں ٹوٹل کتنے مناظر ہیں؟ 4 ہیں، ان میں بھی 4، ان کو یاد کیسے رکھیں؟ ساقس۔ سین سے منظر اول کی اگر ہم بات کرتے ہیں، سین میں کیا ہے؟ سلیم کا ایوان ہے۔ منظر دوم میں کیا ہے؟ منظر دوم میں الف ہے، الف کا مطلب کیا ہوا؟ انارکلی کا حجرہ۔ منظر سوم میں کیا ہے؟ قاف ہے، قاف کا مطلب قلعہ لاہور کا ایک ایوان، جو ابھی آپ کا جواب ہوا تھا سوال کا۔ اسی طریقے کیسے یاد رکھیں گے ہم لوگ؟ ساقش۔ منظر چہارم میں کیا ہے؟ بڑی شین ہے، شین سے شیش محل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم نکالتے ہیں سین الف قاف شین، تو کیا نکلا ہمارا؟ ساقش۔ تو اس طریقہ سے حروف بھی شاقس میں 4 ہیں، اور منظر دوم میں 4 آپ کا منظر بھی ہے، منظر دوم کے 4 مناظر بھی ہے۔ تو ساقس سے ہم لوگ منظر دوم کے ایکٹ کو، منظر دوم کے سین کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ باب سوم کی اگر بات کرتے ہیں تو موت ہے، ان میں ٹوٹل کتنے مناظر ہیں؟ 5 ہیں۔
ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे? सजा जिस, सीन से सलीम का ऐवान, जे से जिंदा, मंजर दोम में, मंजर सोम में क्या है? अलिफ है, अकबर की खामगाह, मंजर चहारम में क्या है? जे है, जिंदा का बैरूनी मंजर, मंजर पंचम में सलीम का ऐवान। इस तरीक़े से सजा जिस, साक़िस, बसगब, ये ट्रिक को आप अपनाएं तो अनारकली के तमाम एक्ट और मनाजिर को आप आसानी के साथ में याद रख सकते हैं और इम्तहान में गलती की अमकानात बहुत कम हो जाते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल, दूर की आग ज्यों त्यों टालिया जाए, नज़दीक की आग को संभाल लिया जाए, ये इक़्तिबास किस दास्तान का है? देखिए मैंने बहुत ही कम ही इक़्तिबास लिखा है, बस आपके सामने मैं पहचानने के लिए लेकर के आया हूँ कि ये इक़्तिबास किसका है। रानी केतकी की कहानी, ऑप्शन बी में सबरस, ऑप्शन सी में फसाना अजाइब। अब देखिए क्या है, जब हम रानी केतकी की कहानी की बात करते हैं तो रानी केतकी की कहानी में क्या है? दक्कनी अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। ये रानी केतकी की कहानी में क्या हिंदी के खालिस अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। फसाना अजाइब की ज़बान अलग है, मुक़फ़ा मुसज्जा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। सबरस की अगर हम बात करते हैं तो सबरस में क्या दक्कनी अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। सबरस को पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि दक्कनी अल्फाज को आप पहचान लें। दक्कनी अल्फाज देखिए, यहाँ देखिए को वो लोग कू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? को। जब हम लोग को लिखते हैं उसको वो लोग कू लिखते हैं, ठीक है। उसी तरीक़ा से ये सारे दक्कनी अल्फाज हैं, ज्यों यानी नून गुन्ना का इजाफा कर देते हैं, और जब हम इनको पढ़ते हैं तो इनको ज़ुबान भी कुछ अलग है। दूर की आग ज्यों त्यों टाल लिया जाए, नज़दीक की आग को संभाल लिया जाए, इस तरीके से अल्फाज ज़ुबान को पकड़ें तो जिससे बात समझ में आ जाती है ये जो है सबरस का इक़्तिबास है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। कौन सा अफसानवी मजमुआ प्रेमचंद का नहीं है? देखिए नहीं है पूछा गया है, याद रखिएगा। अक्सर इम्तिहान में हम गलती कर देते हैं कि नहीं है पे गौर नहीं करते हैं। इम्तिहान में जब भी नहीं का लफ्ज़ मिले तो संभल जाना है। कौन सा नहीं है? वारदात है, ज़ादेरा ये भी है, अंदाता डॉट है, दूध की कीमत ये भी है। तो इनका जवाब क्या हो जाएगा? अंदाता। ठीक है, अंदाता किसका है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं हम। पौधे का ताल्लुक़ अदब की किस सिन्फ से है? काफ़ी दफ़ा इम्तिहान में पूछा गया है, अभी हाल में ही इम्तिहान हुआ था उसमें पूछा गया था पौधे का ताल्लुक़ अदब की किस सिन्फ से है। तो इनका सही जवाब क्या है? अफसाना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ड्रामा, ऑप्शन सी रपूतास। तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। पौधे किसने लिखा ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर इसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही ज़िंदगी हमारी। फिर इसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही ज़िंदगी हमारी। किसका शेर है? काफ़ी मशहूर कलाम, काफ़ी मशहूर शेर हैं। ऑप्शन ए मीर, ऑप्शन बी गालिब, ऑप्शन सी शाद अजीम आबादी। तो इनका सही जवाब हो जाएगा गालिब। आगे बढ़ते हैं हम। मसनवी सैफुल मलूक व बदीउल जमाल का सने तसनीफ़ क्या है? ऑप्शन ए 1033 हिजरी, ऑप्शन बी 1035 हिजरी, ऑप्शन सी 1037 हिजरी। देखिए जब भी हम मसनवी को दास्तान को याद करें तो हम इंग्लिश के डेट के साथ साथ हम उनके उर्दू की तारीख़ में भी याद करें, क्योंकि कभी कभी इम्तिहान में उर्दू की तारीख़ भी दे दिया जाता है और हम गलत करके चले आते हैं। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1035 हो जाएगा। इसलिए अंग्रेज़ी की तारीख़ के साथ साथ में उर्दू की तारीख़ को भी याद ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं हम। मीर की आप बीती का नाम क्या है? ऑप्शन ए निकातुश्शोरा, ऑप्शन बी ज़िक्र मीर, ऑप्शन सी बयान मीर। तो इनका सही जवाब हो जाएगा ज़िक्र मीर। आप बीती की बात हो रही है। निकातुश्शोरा क्या है? ये भी मीर का ही है, लेकिन क्या है ये तज़किरा की किताब है। फ़िराक गोरखपुर किस सन में पैदा हुए? 1896, 1897 या 1899? ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ से सवाल पूछे ही जाते हैं, इसलिए
डेट ऑफ बर्थ को आप ज़रूर से ज़रूर याद करें। थोड़ी सी दिक्कत होती है याद करने में, लेकिन आप ये मान के चलें कि डेट ऑफ बर्थ से मैं ये कहता हूँ कम से कम डेट ऑफ बर्थ से 10 सवाल आपके ज़रूर पूछे जाएंगे, चाहे वह ज़ुमरे मिलाने वाले हो या सही तरतीब, या पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए या मौत के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ये सवाल 100% आपके इम्तिहान में पूछे ही जाएंगे, इसलिए डेट ऑफ बर्थ को आप ज़रूर से याद करें। नंगी आवाज़ें और खुदा की कसम किसके अफसाने हैं? ऑप्शन ए मंटो, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी इकबाल। तो इनका सही जवाब हो जाएगा मंटो के अफसाने हैं। आगे बढ़ते हैं हम। खून के धब्बे किसके ड्रामों का मजमूआ है? आगा हशर काश्मीरी, इम्तियाज़ अली ताज, मोहम्मद हसन। तो इनका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद हसन। आगे बढ़ते हैं हम। शेर नौ किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन ए आगा हशर काश्मीरी, ऑप्शन बी मोहम्मद हसन, ऑप्शन सी कृष्णचंद्र। तो इनका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद हसन। आगे बढ़ते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए 1890, ऑप्शन बी 1891, ऑप्शन सी 1896। तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1896 में। उर्दू अदब की शुमारी तारीख़ किसकी किताब है? ऑप्शन ए मोहम्मद हसन, ऑप्शन बी ज्ञानचंद जैन, ऑप्शन सी अल्लामा इकबाल। देखिए, किताब के हवाले से सवाल पूछे ही जाते हैं। किताब से भी आप मान के ये चले कि आपको 10 सवाल ज़रूर किताब के हवाले से मिल जाएंगे। इसलिए किताबों की एक फ़हरिस्त में बहुत जल्द आपके लिए लेकर के आऊँगा, जिसमें ख़ास तकरीबन 100 किताबें रहेंगे, जिनको आप याद कर लें, इंशाअल्लाह उन्हीं से सवाल पूछे जाएंगे। तो उर्दू अदब की शुमारी तारीख़ किसकी किताब है? मोहम्मद हसन की किताब है। आज का आखिरी सवाल। तराना किसकी रुबायात का मजमूआ है? ऑप्शन ए फिराक, ऑप्शन बी जोश, ऑप्शन सी यगाना चंगेज़ी। तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यगाना चंगेज़ी का है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इसी तरह से मैं आपके लिए मज़ीद वीडियो लेकर के आता रहूँगा, इसलिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें और पॉजिटिव कमेंट भी करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।